Okay. All right. So, so I was talking about the quality, of the consultations that have improved over the period of time, right? And, you know, and I still believe that at times when I used to look at a chart, we have a panel of astrologers with us. Like I have good friends from overseas. We have a group, we talk to each other, right? And these are the people you see on YouTube channels. We have four, five, six people together, talking about so many things. So, you know what? At times we used to complain that looking at this chart, I'm not able to connect to this chart. You may also feel the same. At times you see a chart and you're totally blank. And maybe 10 minutes from there, you see another chart and you can completely connect with that chart. Right? So at times you keep on looking at a chart, उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता. And at times, so many things are crystal clear. Right? You might be facing such issues in your life, right? Like if you are a sportsman, if you are a cricketer, if you go to a gym, at times you're very much inclined towards your exercise. You love to exercise, and some days you're not connecting. You just want to walk away, and maybe you can take a walk. Maybe I mean, like Sachin Tendulkar or Virat Kohli, they go out at the first ball, clean bowled, right? It doesn't mean that they are not great players. It happens with everyone. It happens in every goddamn profession in the world that at times you can do the same thing very easily, at times the same thing behaves like a mountain. So when this Karam Vipak Samhita was introduced in my life, I started reading, started understanding the deeper meanings of Karam Vipak Samhita. There was not even a single chart, you know, where I could not connect. I was able to connect to every single chart, right? Go deeper in understanding the meaning of that chart and giving them the remedies. You see, I'll give you a small story. I don't know how many of you know this. I want to tell you the karma theory. As you know, that, you know, Shri Ram, okay, was getting married to Ma Sita, all right? And obviously, you know, the appearance of Lord Ram was in the Treta, okay, Yug, and Ma Sita is getting ready, okay. And when you get ready, you need lot of assistants around you who are trying to assist you, making you beautiful. कोई आपको मेहंदी लगा रहा है, कोई आपके बाल ठीक कर रहा है. And the way you go to a parlor and get ready for your wedding, right? But that was Ma Sita, right? And Sita was a princess, and she's getting ready for the same. And she has to look the best. She has to look very, very beautiful. So thousands of assistants are trying to make Sita Ma very, very beautiful for Shri Ram. And she is Mahalakshmi as well. And to, look Mahalakshmi beautiful, you can't even imagine the amount of, effort which is required. So technically, there were so many, ladies around Ma Sita, and they were trying to make, Sita beautiful. And, while you are making someone beautiful, they were only just thinking, they were just thinking that हमें भी राम जैसे हस्बैंड मिले, राइट? हम भी एक दिन ऐसे तैयार हों. आपके मन में भी किसी ब्यूटीफुल सी लड़की को दुल्हन बनी देखकर व्हेन यू आर 18 19 20 ईयर ओल्ड, तो आपके भी मन में आता है कि probably one day we can become princess or or maybe queen of such a पुरुषोत्तम राम, राइट? तो उन सब के मन में ऐसा ख्याल आया दैट वी शुड ऑल्सो गेट हिम like a husband one day. And in the Dwapar Yuga, right, all these assistants, the Devis, they were actually the gopis, and Krishna had to marry them. So that is why Shri Krishna had 16,000 gopis trying to save those widows जिनको सती बनाया जा रहा था,
right? You see, just a small karma of a thought, राइट, जिसको आप बोलते हो ना पावर ऑफ अट्रैक्शन, राइट? आप यूनिवर्स से बोलोगे ना मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, मैं एक दिन इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहता हूँ, तो वो कर्मा आपका लिखा गया है, आपको लगता है कि वो फुलफिल ही नहीं हुआ, राइट? वो तो लेकिन किसी ना किसी युग में वो फुलफिल होगा, इट इज गारंटीड। इसीलिए बार बार कहते हैं कि जब आप पॉजिटिव 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 सोचते जाते हो ना, तो एक दिन वो पॉजिटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि उसको किसी युग की इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? उसको किसी युग के इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। इट हैपन्स, इट मैनिफेस्ट्स इन द सेम युग। यू सी, आप माँ सीता को सिर्फ तैयार कर रहे हो, और तैयार करते करते सोच रहे हो कि मुझे भी राम जैसे पति मिले, और आपको वो मिले, नॉट इन दिस युगा, मे बी इन द सेकेंड युगा। यू गॉट इट, right? You have to understand that to this level we have karma theory. To this level we have a karma theory. I was thinking, why do people go to prostitutes? Why they do such a negative karma? Why people eat a lot of non-vegetarian food? Why people die at a very young age with an accident with a truck or a train? It is bloody just the thought process in some life you've taken, just thought कि हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, and that has to happen. That's the level of sensitivity of a karma. That is why I always say, keep chanting ram 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 24 by 7 365 days. You will become the part of the team of Shri Ram. When the Satyuga comes, right, and there are probables of people coming into the team of Shri Ram, you will be the one eligible already, because you thought that I am around Shri Ram. In some yuga, you have to be around Shri Ram. Isn't that interesting? हाँ, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, हाउ डिड श्री राम किल्ड द किंग बाली? हाउ डिड श्री राम किंग, बाली को मारने के लिए श्री राम को, दैट द मंकी किंग, बाली, you've all seen the Ramayana, right? So Shri Ram was hiding behind a tree, हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, और वहां से बाली को मारा था। आप सबने रामायण देखी है ना, यूज टू कम, यू सीन, तो छुप के मारा बाली को। लुक एट द कर्मा, द सेम बाली अपीयर्ड इन द द्वापर टू किल कृष्णा एट सोमनाथ। वहां पे जो शिकारी ने तीर मारा था ना, he was the monkey king Bali, right? Every single karma that you have done, you cannot escape, right? Now imagine you are doing a consultation, हम्म, और आप देखते हो कि किसी का शुक्र मरण कारक स्थान पे है, या किसी का शुक्र नीच है, या किसी का शनि नीच है। हाँ, तो आजकल के ज्योतिषी क्या करते हैं? व्हाट डू दे डू, राइट? दे विल स्टार्ट गिविंग यू द रेमेडी ऑफ शनि, और दे विल स्टार्ट गिविंग यू द रेमेडी ऑफ शुक्र। हाँ, किसी का मंगल वक्री है तो बोलेंगे आप मंगल का रेमेडी करो, डू दिस रेमेडी फॉर मार्स। नाउ आई गिव यू सेम सिनेरियो, you are having very high fever, very high fever. You go to a doctor without doing any investigations, without doing any particular blood tests or an X-ray or an ultrasound. The doctor has given you the medicine for the fever. Okay, he's just given you a Dolo 650. Please have this paracetamol. आपका बुखार उतर जाएगा. So you took, for 2 hours, the fever was not there.
And imagine that if you're an illiterate person who doesn't know anything, you're a labor class, you will be very happy that the doctor is very good and my fever is gone. And after 2 hours, you will have the same fever coming back to you. And then you'll have to rush to the doctor. This is what is happening, with astrologers. You go, you take a remedy, it gives you maybe some relaxation for 10 days, 15 days. You got some money, you got a contract, a job offer, but the interview is not clear. रिश्ता आया पर रिश्ता clear नहीं हुआ. Right? You start a business, initial starting was good, could not sustain it. That means you are doing the remedies for the present alignment of the planets, present circumstances, which is going to be very, very temporary. It is not going to be a permanent solution. So, the permanent solution is that you investigate what is the cause of the fever. Is it the stomach infection? Is it the throat infection? Or if there is an infection in any other part of the body, the similar kind of antibiotic is given to the native and he's cured within 5 days, 10 days, and never gets a fever again. This investigation is Karam Vipak Samhita. Okay, that if in the present time you are getting a problem in your life, in the present time, you are facing job issues, right? You're facing, mental issues. You're facing, you have a lot of plans, but you have issues executing them, right? It is not you who is in trouble. Some karma of your past is stopping you not to execute them. Until and unless we do not identify the karma, we will not be able to go ahead in our life. No matter how much you do the remedies of the present circumstances, you have to do something for your purva janma, for your previous life. Otherwise, it's not going to work. So, people say, what is karma actually? People is whatever we think, whatever we do is a karma. Well, no. Karma is basically, you know, divided into primarily four parts, but I will give you, the importance to the three parts. And this Karam Vipak Samhita is a very, very curious book. It shows curiosity of Ma Parvati. Why only Shiva and Parvati is involved in this book? Ma Bhagavati writes your Bhagya. It is the nature of the mother to save the child. It is a basic nature of the mother. For an example, at times many females don't know what their husband or the father of their children have saved the resources for the children. माँ को नहीं पता होता कि बाप ने कितना कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है अपने बच्चों के लिए. So mother is silently asking, we have our child, we have this son. So when he grows up, what are the plans? How about his education? How about his marriage? कहाँ से कैसे पैसा आएगा? So mother is also helpless and mother is also thinking. So in the same way, Mahaparvati knows that my children have done certain good and bad karmas of their life. Like, consider yourself as the children of Ma Bhagavati. If you have mother alive with you, it is good. All those people who doesn't have mother or father alive with them, their ultimate mother and father is माँ गौरा एंड महादेव शिव. तो उनको मंदिर में जाओ और जोर से हक करो माँ गौरा के स्वरूप को, बोलो माँ आज के बाद तू मेरी माँ है, राइट. और भगवान शिव को बोलो कि आज के बाद आप मेरे पिता हो. बस इशू रिजॉल्व. और और जब लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही हो तो अपनी एक कुंडली, टेक योर हॉरोस्कोप
Okay, take a printout of your horoscope. What should be there in it? Your लग्न कुंडली and 16 divisional chart. 17 पेज होने चाहिए उसमें, right? Your लग्न कुंडली and 16 divisional chart. Go to any Jagannath mandir or go to any Krishna mandir and keep your horoscope in the lotus feet of Krishna or Jagannath. That this is my all nine planets, 27 nakshatras. Now show me the path. Now show me the path. He is not going, आपके कर्म नहीं कटेंगे, लेकिन आपको रास्ता ऐसा मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा. इट इज माई गारंटी टू यू. इट इज माई गारंटी टू यू. 100% take your horoscope. As a guru, as a teacher, I permit you to keep your lotus horoscope in the feet of Jagannath or in the Krishna. जाओ, रख के देख के आओ सारी प्रॉब्लम. और उसके बाद बोलो कि मैं मां पार्वती और शिव जी का बेटा हूं. मेरी मां पार्वती मेरी मां है और शिव जी मेरे भगवान पिता है. बस इतना सा करके देखो एंड टेल मी, गिव मी फीडबैक ऑफ नेक्स्ट 6 months. बस इतना सा ही, राइट? योर कर्मास विल नॉट बी सेटल्ड, बट यू विल गेट अ पाथ. तो इसी चक्कर को देखकर मां गौरा शिवजी से पूछ रही हैं. वो कह रही हैं, शिव जी, आप तो महादेव हो. क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर कोई इंसान किसी पर्टिकुलर जगह पे पैदा हुआ है और वो सफर कर रहा है, उसको पता भी नहीं है कि उसकी सफरिंग क्या है, उसको मालूम नहीं है, तो इज देयर अ वे जिससे कि आप मुझे बता सको या उसको पता लग सके कि उसका क्या ऐसा कर्म रहा होगा? तो शिव जी कहते हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा आज. आई विल टेल यू द सीक्रेट. वो कहते हैं, मैं आपको 108 स्टोरीज सुनाऊंगा और हर एक स्टोरी में लाखों करोड़ों लोग पैदा होंगे. दैट मीन्स वी हैव 27 नक्षत्रस एंड एवरी नक्षत्र हैज अ पदा. पदा 1, पदा 2, पदा 3, पदा 4. वेन यू मल्टीप्लाई, उसको चरण भी बोलते हैं. चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4. धर्म अर्थ काम मोक्ष. हाँ. तो वो बोलते हैं कि 27 into 4 is 108. For every nakshatra pada, I will tell you a story which will have lot of negative, positive karmas. For every nakshatra pada. So 108 stories हो गई. And माँ पार्वती saying, महादेव, एक नक्षत्र पदों में करोड़ों लोग पैदा होंगे, करोड़ों. तो वो सेम स्टोरी कैसे अप्लाई होगी करोड़ों लोगों के ऊपर? तो उन्होंने इस कर्म विपाक संहिता में ये सिखाया कि the karmas that I am talking about in a particular story, the native will have similar kind of karmas, but आपको हर एक की कुंडली में जाकर उसकी लग्न कुंडली और उसके नवमांश D9 चार्ट को एनालाइज करना होगा. अब मां पार्वती पूछ रही है D9 चार्ट की क्यों? तो उन्होंने बोला कि मान लो नवनीत के ये पूरे कमरे में कर्म भरे पड़े हैं. उसने इतने जन्मों के कर्म किए हैं, वो सब इस कमरे में ऊपर तक भरे हैं, जिसको सेटल करने में 2000 साल लगेंगे. हाउ मेनी ईयर्स? 2000 ईयर्स. कितने लाख जन्मों के कर्म हैं. अब नवनीत के पास कुछ ऐसे कर्म आ गए जिसमें नवनीत की लाइफ केवल 10 साल की है, कि उसने कुछ ऐसा कर्म किया कि उसे 10 साल ही वहां रहना है. तो वो इतने बड़े कर्मों में से उसको थोड़े से कर्म उठा के दिए जाएंगे आत्मा को, कि जाओ नीचे 10 साल लगा के रहो, सेटल करके वापस आओ, फिर आपका अगला चंक आपको दिया जाएगा. इसको बोलते हैं अल्पायु. कि आप गए, आपने 10 साल वो कर्म सेटल किए, यानी कि जब आप पैदा हुए
तो आपको कोई ना कोई इशू था, कोई प्रॉब्लम था, आपने किए वापस आने। हाँ, फिर और बोले नहीं, अभी आपके पास ऐसे कर्म है जो आपने 72 ईयर्स तक आपने सेटल करने हैं। हाँ, तो आपका जन्म में लिखा गया 72 ईयर्स कि ये इसका मृत्यु होगा 72 साल बाद, ये सारे कर्म हैं। वो जो इतने बड़े कमरे में से जो आपके लिए इतने से कर्म उठाए गए जो आपको 70 72 साल में सेटल करने हैं, दैट चंक ऑफ कर्मा इज D9 चार्ट। क्लियर है? और जो वो पूरा चंक है, वो पूरा कमरा जिसमें कर्म भरे हुए हैं, दैट इज योर D60। ठीक है? सो कैन आई कॉल इट कि योर संचित कर्मा इज D60 एंड योर प्रारब्धा इज D9? यहां तक सबको क्रिस्टल क्लियर है बात? राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है ये भी समझने में कि मान लीजिए एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप इज D60, उसमें से आपने एक ट्रिप के लिए टैंकी फुल करवाई, द फुल टैंक ऑफ योर पेट्रोल, राइट? दैट इज योर दिस लाइफ जर्नी, यू विल कम बैक फ्रॉम दैट ट्रिप, and the petrol that you've used, or the fuel that you've used for that trip, is your D9 chart, and the car and the experience is your D1 chart. While going to the trip, what all good and bad things have happened are your divisional charts. लाइक आपने क्या काम किया, कैसे गाड़ी चलाई, एक्सीडेंट हुआ, टायर पंचर हुआ, भूख लगी, अच्छा खाना मिला, बुरा खाना मिला, किसी ने लिफ्ट मांगी, कोई साथ बैठ गया, उससे आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, पिछली सीट खाली थी वहां पे भी दो तीन बैठ गए आके। हाँ, दैट्स योर लाइफ। बट द कंजप्शन ऑफ द फ्यूल इज D9। ओके, इसीलिए हम उसको डेस्टिनी का चार्ट भी बोलते हैं। आपको पता है वो स्पाउस का चार्ट क्यों कहा कहलाता है? वाई इज D9 योर स्पाउस चार्ट? वाई? इट इज नॉट द चार्ट ऑफ योर वाइफ। नो, the first thing you marry in your life is your body. Your soul marries your body, because with the body you live the maximum from the day one to the last day. You cannot divorce your body. No divorce, no separation. Separation means death. So D9 chart says destiny and spouse because your first marriage happens with your body. You take all the feelings from the body, isn't? When you eat something, when you think sexually, when you think physical, it's between your soul and the body. Later on, another body comes with you. Yes or no? Your first marriage is your body. So, when a soul is going to marry a body for the lifetime and the separation means death, is known as your D9 chart. Hello? It has that meaning. So, in the D9 chart, we know about your profession also. The second house of your D9 chart is bloody more important than D10 chart. You know that? The second house of the D9 chart is exact profession that you are into. The software engineers, the IT people will have connection of Mercury and Rahu with the second house. The people who are into IT, they will have it. People who are doctors will have connection of Moon. People who are lawyers and people into business administration will have connection of Jupiter. Astrologer will have connection of Moon and Jupiter, or Moon. The top astrologers. The second house itself is the profession of the D9, or what you're going to do, what your life is going to be. I mean, open your D9, look at the second house of the D9 and match. If a planet is sitting, if the planet is not sitting, then the Lord of the second house is what you are doing in your life. Is what you are doing in your life. It is a major data point in birth time rectification. 90% of the people who have Surya in the second house of the D9, they are either working for government or associated with government
और एसोसिएटेड विद लाइमलाइट, जहां पे उनको बहुत लाइमलाइट मिलता है, जहां पे उनको काम में बहुत डिसिप्लिन लेना पड़ता है, जहां पे उनको बहुत नॉलेज गेन करना पड़ता है. Surya is about taking lot of knowledge and using that knowledge and then working. They may be an engineer, but every time they want to do something, they have to study with Surya in the second house of the Navamsha. Are you understanding what I'm saying? Hello? It is not only your wife, not your husband. It is your health, it is your profession. Lot of people who have bad planets in the fourth house of the Navamsha, Rahu बैठा है, Ketu बैठा है, that is the disease you have in your body. Look at the fourth house of your Navamsha. Whatever planet is sitting there is your disease of the body. People having Rahu there, they have 100% Vata issues in the body. जिनका शनि बैठा उतने उनके घुटने वात, there's lot of issues there because that is the chunk you brought to settle in this life. तो महादेव कहते हैं, look पार्वती, every person will have a different navmansh. Every person will have a different D60. That is why D60 changes with 45 minutes, 45 seconds to 1 minute. D60 45 सेकंड से 1 मिनट में बदल जाता है. नवमांश उतना टाइम लेता है बदलने का जितना सूर्य सुबह सूर्य उदय के बाद होराइजन से ऊपर जाने को लेता है. दैट इज 10 to 13 मिनट्स. 10 से 13 मिनट में नवमांश बदलेगा. और जब आप कर्म विपाक संहिता की स्टोरी को नवमांश और लगन कुंडली में सुपर इंपोज करोगे, और आप सुपर इंपोज कैसे करोगे वो हम सिखाते हैं. हाउ डू यू टेक दैट वन बेसिक स्टोरी एंड अप्लाई टू 10 डिफरेंट चार्ट्स, टेलिंग देम द थीम ऑफ देयर, बिकॉज you know in whichever house the moon is going, in whichever house Shani is going, and the karma is associated with that story, उन सब के भाव डिफरेंट होंगे. आपकी कुंडली में हो सकता है नवमांश में शनि चौथे में हो, मेरे पांचवें में हो, इनके सातवें में हो, उनके अष्टम में हो, और वो वापस D1 में किस भाव में जा रहा है वो पूरी स्टोरी की जो थीम है उसको बदल देगा. फॉर एग्जाम्पल आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं. वो महादेव कहते हैं कि इस इंसान ने पिछले जन्म में बहुत सारे हिरणों का शिकार किया. हम्म. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप शिकारी थे और आप हिरन मार रहे थे. इसका मतलब ये है that you were a person who doesn't have any mercy. And suppose the planetary combination of the D9 and D1 is focusing on the seventh house. That means you were merciless on your spouse. That hiran, that डरने वाला जानवर जिसका कोई कसूर नहीं है, वो आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड थे, जिनको आपने मारा मतलब इतना तंग किया कि उनकी लॉन्जेविटी कम हो गई, वो मरने पे मजबूर हो गए. सपोज दैट सेम कॉम्बिनेशन गोज टू द थर्ड हाउस, तो वो हिरन कौन बना? आपका छोटा सिबलिंग, आपका बुआ. अगर 11th में गया तो वो बड़ा भाई. अगर वो 7th हाउस में गया तो मासेस, बहुत से समाज के लोग जिनको आपने इतना तंग किया. 5th हाउस में गया तो बच्चे, 6th हाउस में गया तो मामा, 8th हाउस में गया तो एक्सटेंडेड फैमिली, 9th हाउस में गया तो बॉसेस एंड गुरु. You understand that same meaning that you were killing deers and you were killing pregnant deers means that along with the people you have also ruined their children. Are you understanding the deeper meaning how we will take? And once we've understood this, then Ma Parvati says, भगवान मेरे बच्चे हैं, गलती हो गई उनसे, ह्यूमन फॉर्म में थे, कलयुग में थे, धरती पे थे, भूलोक पे थे, देवर
They were exposed to all these negative things. सपोज आपको शराब के बारे में पता ही ना हो, आपको नॉनवेज के बारे में पता ना हो, आपको यू नो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलिसिट सेक्सुअल नॉनसेंस दैट वी डू, उसके बारे में पता ही ना हो लाइफ के अंदर, तो आप कैसे करोगे? आप करोगे ही नहीं, बिकॉज यू डोंट नो, राइट? आप में से तंत्र कितने लोग जानते हैं? कोई भी नहीं। आप तंत्र इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको तंत्र का ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान हो तो करोगे, अगर आपको एक्सपोजर हो तो आप करोगे, राइट? सो सिमिलरली मां पार्वती भगवान शिव को कह रही हैं कि ये लोग हमने एक्सपोज किया इन लोगों को, देवर एट अ भूलोका, एट अ डर्टी प्लेस, राइट? उनसे कर्म हो गए, तो महादेव आप माफ करो। बोले मैं माफ नहीं कर सकता, लेकिन इंसान को अपने कर्म खुद काटने होंगे। द पर्सन विल हैव टू ब्रेक हिज कर्मास हिमसेल्फ. So then he says, okay, tell me the remedies. तो then, Shiva is saying, जब सप्तमी तिथि होगी, संडे होगा, फास्ट करना होगा, ये मंत्र करना होगा, ये जाप करना होगा, यहाँ पे जाके नहाना होगा, ये दान पुण्य करना होगा, इस दिन को दान पुण्य करना होता है. And he gives you the remedies. That is where I felt the best in my life after reading Karam Vipak Samhita. The day I have given the remedies to my clients and my followers and my students, and they have done those remedies, their life has become miraculously good. Miraculously good. Because the prarabdha was broken. Excuse me. What was broken? The prarabdha. कर्म ही कट गया. पिछले जन्म का कर्म ही कट गया. और अगर कर्म ही कट गया तो सब कुछ ही कट गया. यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज कर्म विपाक संहिता. 108 डिफरेंट स्टोरीज. और मां पार्वती कहती है कि शिव, आप हमें ये बताओ कि डू वी हैव टू look at all the planets in all the nakshatras and all the padas to understand somebody's karma? Shiva says, well, the most important is the Janma Nakshatra. Means Janma Nakshatra means you have to see moon, and you have to see moon is in which nakshatra, in which pada. That's the most important. That is where the highest amount of karma will be there. Although you must see the other planets also in other nakshatras, but the most important is moon. And it says, okay. And then Shiva says, Ma Parvati, that is the reason moon is not pure white. On the day of Pralaya, on the day when all the karmas are over and a new beginning starts, the moon will be white. But when you look at the moon and you see a little creamy moon, little gray moon, not the color of the body or not white, is because moon is holding the karmas of all the human beings. That is why it has lost its purity. And that is why when you look at the picture of Vishnu, when everyone will look at the picture of Vishnu, the best and the original picture of Vishnu will always be black or gray in color. You go to Tirupati, Vishnu is pure white. It is your karmas that have made him black. He's holding on to your karmas and waiting for you people to get settled and maybe wash your karmas. That is why हम बोलते हैं कि हम अपने कर्म धो रहे हैं. We are washing our karmas so that we can get that pure white thing. That is why Krishna सांवले पैदा हुए थे. Do you think God really wanted to be, not very fair when he was born? अगर भगवान शिव नीले हो सकते हैं जहर पी के, तो लॉर्ड ऑफ योर द
The heaviness of your karmas is giving color to Shri Ram and Vishnu. It is your karmas that are giving those colors to Vishnu ji. Vishnu is not black. He's holding on to your karmas and giving you black. And when you settle your karmas slowly, 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 your black hairs turns white. White hair is not a problem. White hair is technically that you have settled lot of karma. Lot of people at the age of 20 start getting white hairs because lot of karmas are burnt with 1 to 20. Lot of karmic settlements keep happening. And that is why hairs are represented by Ketu. Ketu is your hairs. And I strictly tell people if you are running through Ketu Mahadasha or a Rahu Mahadasha, don't alter your hairs. Let it be of the natural color. When we color our hairs, हम छुपा रहे हैं. हम अब एक्चुअल में जो है उसको छुपा रहे हैं. So in this book, we are going to say, Shiva says that there are three types of karmas, not the conventional karmas that you know, the Kriyamana karma and this, that. No. Shiva says three words. He says Kathni, Vichar, and Karni. Should I repeat? Kathni, Vichar, and Karni. Kathni, technically means you thought something. A thought came in your mind that how is he so successful? Can't I become like a successful person? At times you have a wrong thought about your guru, your teacher, because you think you're more smarter, you're better. Thought. You haven't done anything. You just thought. Kathan karna, kathni. Hmm? And then vichar. Now that negative thought is so powerful that it multiplies a lot. One after the other, it will keep multiplying, you make it large. That is known as vichar. तभी आपको बार बार बोलते हैं आपके विचार कैसे हैं, शुद्ध विचार हैं, शुद्ध विचार हैं. You look at a female and the thought comes in mind and your vichar goes bad. You have not done anything bad, but your vichars are there that are going to take you to a negative, karma. यहां पर शिव जी बोलते हैं कि एक स्टोरी है किसी नक्षत्र की जिसमें एक बहुत ही अच्छा एक इंसान था. उसका वो बहुत दान पुण्य करता था. उसके दो बेटे भी पैदा हुए और उसने अपने बड़े बेटे की वाइफ के साथ यानी अपनी बहू के साथ रिलेशनशिप किए. हाँ, ही हैड एन इलिसिट रिलेशन और इतना इलिसिट रिलेशन था कि अपने बेटे को मार दिया. अब उन्होंने मर्डर नहीं किया होगा. उन्होंने क्या किया होगा, अपनी बहू के ऊपर गलत नजर रखी होगी सिर्फ, और अपने थॉट्स में उसके साथ जो भी किया होगा, जस्ट इन द थॉट प्रोसेस, दैट डर्टी माइंड which gives you equal feelings in the physical body, the body you have married on the day one. Just because of that thought process, भगवान शिव कहते हैं कि उसे अगला ह्यूमन बर्थ लेने से पहले उसे कुत्ते की जोनी में जाना पड़ा. He has to be a dog. Why you see dogs around you? Because two karmas that they have not done in the past. One, anyone who is not loyal, उसको कुत्ता बनना पड़ेगा to understand what is loyalty. Someone who is not a loyal was is in the yoni of a dog. And then what do dogs do? The dogs mate openly. And they don't choose they're not sincere towards their partner. Any bitch, anywhere, any roadside, any choraha, you will see a dog mating.
and he's stuck in that meeting, and people even beat him, he will not be able to come out of that lock. That is the pain of the dog. And you will see many people, when a dog and a bitch is locked on the roadside in India, people are also picking up stones and beating on them. Imagine that you are in a physical relationship and you are in the lock, and somebody's, you know, throwing stones at you. Look, imagine the karmic settlement. And you will be born in a worst condition as a dog, not a pet dog, a street dog. If you are a pet dog, the problem was only with the loyalty. So you have good food, good home, and be loyal. But when the problem was with the loyalty as well as the other relationships, then you will be a street dog, and street dog in the worst circumstances. And when you have really tortured and raped people, then you will be a street dog with skin issues as well. The skin is ripping off from your body. And when, after doing all these things, just because of your behavior, someone, maybe just because of your behavior, your son starts drinking, and he died of drinking because of the depression given by father or the mother, then you will be a dog who will come under a truck or a bus and will be smashed. You will be dying on the roadside. यार, आपको क्या लगता है कि भगवान इतने निर्दयी हैं कि वो किसी को सड़क पे मरने देंगे? वो निर्दयी नहीं, इट इज द कर्मा, इट इज द कर्मा दैट यू हैव डन. और अगर गाड़ी 100-200 पे चल रही हो ना, सामने इंडिया में स्पेशली कोई कुत्ता मरा पड़ो और आपके पास टाइम ना हो लेफ्ट राइट करने का, गाड़ी ऊपर से निकल रही हो, तो राम राम करके निकाल दिया करो, बिकॉज योर लाइफ एंड द चिल्ड्रन हु आर सिटिंग behind you are important. It is a karma. I mean, you should try to save, but not kill. I have seen people dying, entire family dies trying to save a dog. That is also a karma, because you actually killed someone who was very loyal to you. और आपने उसको इतना दुख दिया. और killed someone का मतलब ये नहीं होता है. There are many cold-blooded murders that happen in every bloody family. Every family has a cold-blooded murder. When a wife is having an extramarital affair एंड वो हस्बैंड पकड़ लेता है उस चीज को, तो वो हस्बैंड का कोल्ड ब्लडेड मर्डर है. हस्बैंड जिसने 30 साल जीना था, वो 10 साल में घुट घुट के मर मर के खत्म होगा. एंड यू थिंक दैट ही डाइड हिज ओन डेथ. व्हेन यू गो अप देयर, शिवा विल पुट यू इन द कैटेगरी ऑफ अ मर्डर. It is not murder in the constitution of a country, but it is murder in the constitution of the God. When you do certain things in your life which shortens somebody's life and happiness, is a murder. How many of you agree to this? Raise your hands. It's known as cold-blooded murder. It's a cold-blooded murder which no one knows, but it is done. It is done. अभी मैंने एक पीछे केस देखा. दिस गाय, द वाइफ वॉज इन अफेयर, उसने उसको माफ कर दिया. दोबारा अफेयर हो गया, उसने फिर माफ कर दिया. वो शराब पीने लग गए क्योंकि एक बेटी थी उनके बीच में, बेटी से बहुत प्यार करता था. मैंने उसको बोला, यू विल लूज योर लाइफ, लीव दिस लेडी. इसकी कुंडली में कोई ग्रह नहीं है कि ये ठीक होगी. शी इज गोइंग टू डू होल हर लाइफ ऑल दिस थिंग. एक आया, दूसरा गया, दूसरा गया, तीसरा आया, बिकॉज उसका माइंडसेट ही ऐसा है. until and unless she reaches her 50s and 60s, she will still be of that mindset. वो नहीं माना, मेरी बेटी है, मेरा परिवार है, मैं माफ करता रहूंगा. इवेंचुअली दैट पर्सन डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक लास्ट मंथ. खत्म हो गया वो.
कि कितना स्ट्रेस लेगा वो. हाउ मच स्ट्रेस कैन समवन टेक. When you have such relationships, leave, walk away from such relationships. Don't take that bloody stress because you are killing yourself. You understand? Even if the guidance is there, take at least take the guidance of a teacher or a guru. Then maybe how did I settle my mind? I settled my mind by saying कि उसने इसके साथ कुछ ऐसा किया होगा पिछले जन्म में. चुपचाप बैठ गया, मैंने मुंह उधर कर लिया और अगली कंसल्टेशन पे लग गया आफ्टर लिसनिंग टू द न्यूज ऑफ हिज डेथ. बट अगर मैं डीप सोचूं तो कभी कभी एक जन्म में किसी का गलत कर्म किसी के अच्छे कर्म पे भारी पड़ता है कलयुग के अंदर. पड़ता है. आपका कर्म इतना बुरा नहीं होता है, आपको सहना पड़ रहा होता है. दीज आर द कर्मा थिंग्स दैट आई विल टीच इन कर्म विपाक संहिता. That why you become a dog, why you become a deer, why you become an eagle, why you become a crow, why you become a cow, why you become a bull. People who have not nourished, they come in the yoni of a cow. They have to nourish people whole life, milking them all the time, giving milk to lot of unknown people with no money, with only little bit of food. You consuming milk, you giving money to the shopkeeper or to the vendor. Are you going and feeding the cow? What do you know what has been fed to her? Karma settlement, karmic, total karma settlement, right? And the most beautiful thing about Karam Vipak Samhita is that you need not know the complete nakshatra. आपको पूरा नक्षत्र पढ़ा हो या पूरा नक्षत्र के बारे में जानते हो ये जरूरी नहीं. Because Shiva is only talking of karma. All you should know is signs, planets, placed in which house. You should know the pada and you should know the D9. ये दो चीजें आपके सामने होनी चाहिए. हम्म. अभी मेरे पास एक केस आया. आई विल शेयर द करम विपाक संहिता केस विद यू. आई डू एवरी कंसल्टेशन विद करम विपाक संहिता. विदाउट करम विपाक संहिता, नो क्वेश्चंस. इन माय लैपटॉप बैग, एवरीवेयर आई travel, I have Karam Vipak Samhita with me because it is difficult to remember 108 stories. But the moment I have read them for several times, the moment I open a nakshatra, read just first four lines of the story, I know the story. I don't have to read the entire story because I have read that story, but only to confirm कि ये उसकी story है. Just I read first four lines, the story is in my mind. It just come like this. That will happen with you people also. But the problem is how to decode that story. That is an art. That is an art. You need to learn how to decode that story. So this couple comes to me and couple says they're very well settled by the way. Huh? The jobs are good, they're earning well. They've been married for 6 years. 1992 का जन्म है, एक है 1993 का. 92 93 born people married for 5 6 years now. Struggling for the child to happen. बच्चा नहीं हो रहा. पहले नेचुरल कंसीव करते रहे नहीं हुआ. Went to doctors. Doctors are saying no problem in the reproductive system of the boy, no problem in the reproductive system of the girl. Doctors started giving them, guiding them on ovulation dates. Ovulation का डेट होता है जब ओवरी ओवल करती है, तो उस डेट पे दे स्टार्टेड मेटिंग. नो रिजल्ट. हार गए. स्टार्टेड विद आईयूआई. नो रिजल्ट. देन वेंट टू आईवीएफ. आईवीएफ में तो एम्ब्रियो ही क्रिएट कर देते हैं, मिला देते हैं स्पर्म और एग को, मिला के उसके यूट्रस में रखा. 6 हफ्ते 8 हफ्ते बाद नो प्रेगनेंसी, मतलब वो खत्म हो गया. एक बार प्रेगनेंसी कंसीव हो गया, वो 7th 8th वीक में अबॉर्ट हो गया. पीरियड्स आ गए, मेंस्ट्रुअल ब्लड में निकल, खत्म सब कुछ. सो आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर 6 years 7 years, दे लैंड
in my consultation. Do you think it is the karma of wife only? It is karma of husband and wife both. दोनों का कर्म होता है, दोनों का कर्म होता है। तो जब आप लोगों की भी कंसल्टेशंस हमने की, तो मैंने कर्म विपाक संहिता पढ़ी। लेकिन कभी कभी कर्म इतने ज्यादा होते हैं कि अगर मैं आपको वो पूरे आपके कर्मों का बता दूं ना, तो आप अपने आप से नफरत करने लगोगे। यू विल स्टार्ट हेटिंग योर सेल्फ। बट देन आई टेल देम इन अ वेरी सटल वे, प्राइमरीली द रेमेडीज, प्राइमरीली द रेमेडीज कि आप ये करो बच्चा हो जाएगा। इजंट दैट कस्टमर मोर हैप्पी अबाउट इट? कि मैं आपको गारंटी देता हूं ये चार चीजें कर दो आपका बच्चा हो जाएगा। दैट इज अ बेटर देन ह्यूमिलेटिंग दैट पर्सन कि भाई तूने ये किया अपने लाइफ में। लेकिन देर आर सर्टन क्लाइंट्स हु वुड राइट अ बिग पैराग्राफ टू मी, नवनीत सर, बी स्ट्रांग, बी स्ट्रेट, टेल मी माई पास्ट लाइफ कर्मा, आई वॉन्ट टू नो where the hell I was wrong. I tell them where the hell you were wrong. People give me this question. Tell me, Navneet sir, have I raped someone? I get raped every day in my office. My boss tears me apart with targets and everything. Rape सिर्फ एक physical rape नहीं होता है. There is a mental rape also. Lot of people get every day at their workplace. There is a financial rape which is happening. There is a psychological rape which is happening. Not just a physical rape. You have to understand what karmas have you done. अब मैं आपको उनका चार्ट दिखाता हूं। अब एक्चुअल थोड़ा सा ज्योतिष का मे भी हो सकता है कि मैं एक लेक्चर और लूं इसका, और इस कोर्स को मैं लॉन्च करूंगा जनवरी की संक्रांति को। महादेव कहते हैं, महादेव ये कहते हैं दैट दिस कोर्स एंड कर्म विपाक संहिता शुड बी स्टार्टेड ऑन संडे। इसको संडे से स्टार्ट करना चाहिए, और एक गुरु के साथ जब स्टार्ट करना है तो संक्रांति पे स्टार्ट करना चाहिए। Because it is the time of the new sun, new knowledge. The new Vedic month will start for you. And we are going to start this course on the 2026 first Surya Sankranti. And only to selected students. There will be a interview I will be taking. I will be spending 5-7 minutes with each student, asking him or her his vision about helping people through these karmic remedies. Because with this course, you are going to alter somebody's rape. But one thing is for sure, that you are altering somebody's rape with the Vani of Shiva only. So you are just a messenger. You will be telling महादेव कहते हैं, महादेव कहते हैं। आपने मेरी कंसल्टेशंस में सुना होगा, आई यूज द वर्ड महादेव कह रहे हैं कि आप ये करिए। Mahadev is saying this, Mahadev is saying this, because I am not saying this. This is what Mahadev is telling to मां पार्वती, आप ये करो। So I will have a Zoom consultation with you people, or a conversation with you people for 5-7 minutes. All those students who will apply for this course, you will first have to apply. You will have to talk to me. Maybe I will ask you random questions. Ki at least you should know what is an Ekadashi. You should know basic knowledge of Gayatri Mantra. If you are not eligible, then you spend more time with me and then maybe join another batch. Because it is a responsible thing. But one thing is for sure, even a beginner can join it. Because it's not about, what nakshatra, and you should have great knowledge of Jeshta or a Satabisha or a Dhanishta to know the remedies. No. It's about the remedies are straight away given.
but how and where and when to use and which areas will take a hit is something you have to learn. You understand what I'm saying? So there will be an interview, and that interview will not be taken by any acharya, because this course is going to be started for the acharyas as well, because they are also going to learn with us. So it will be one-to-one responsibility, where I will talk to, maybe if 200 people wants, I will take 200 interviews. 5 मिनट आपको मुझे देने होंगे टू अंडरस्टैंड योर माइंडसेट. So I'm going to show you a chart. In fact, the chart of husband wife जिनके बेबी की प्रॉब्लम है, and when they did these remedies, they got the baby. Right? That's the beauty. That's the power. That's the power. So ये वो दो चार्ट्स हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे. ये मैंने एफ लिखा है, दिस इज फीमेल. एम लिखा है, दिस इज मेल. फीमेल एंड मेल. और इनका ये चार्ट है, एंड दे विल गेट द, इवन इफ आई टेल यू वन थिंग, वो जितने बच्चे चाहेंगे उनको होंगे. द डे दे हैव स्टार्टेड द रेमेडी, दे गॉट द बेबी फ्रॉम शिवा. आई गारंटी यू दैट. वो 2 मांगेंगे, 3 मांगेंगे, 4 मांगेंगे, ट्विंस मांगेंगे, उनके बच्चे होंगे. तथास्तु है, तथास्तु. यू सी. So this is where the chart is. Now, when I look at the fourth lord, the fifth lord is moon in the Shatabisha nakshatra, and everything seems to be okay in this particular chart. Definitely there is a Rahu's drishti on the fifth house, but that is the present circumstances, means going from IVF to this, that, everything is happening. Okay, there's no other, and there's the Saturn drishti as well. So 2 karmas that I see here: child conception, we have this, and we have Rahu's drishti, but we also have Shukra's drishti here, which is a benefic drishti. On the same time, एक फीमेल की कुंडली में प्रेगनेंसी के लिए 5th हाउस और 9th हाउस दोनों देखते हैं. दिस इज वेयर यू कंसीव, दिस इज वेयर यू सस्टेन अ बेबी फॉर 36 वीक्स. 36 हफ्तों के लिए जो बेबी सस्टेन होता है वो 9वें घर में होता है, और कंसीव 5th हाउस में होता है. ओके, ये बात आप याद रखना. फॉर मेल्स वी ओनली सी द 5th हाउस, बिकॉज मेल इज नॉट गोइंग टू कैरी बेबी फॉर 9 months. जैसे भवत भावम मैंने वर्कशॉप भी दिया, पंचम टू पंचम थ्योरी, 5th हाउस का फ्यूचर 9th हाउस में होता है. तो अगर आपने कंसीव 5th हाउस में किया तो 36 महीने तक बच्चा पेट में रहेगा नहीं रहेगा, वो 9th हाउस की अफ्लिक्शंस दिखाती है. इज इट क्लियर? देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स यू विल बी गेटिंग. वी आर नॉट गेटिंग कंसीव्ड, देन यू जस्ट लुक एट द 5th हाउस. We are getting conceived, but the baby is aborting. Then the problem is with the 5th house as well as the 9th house. पंचम से पंचम. सिंपल कॉन्सेप्ट, सबको पता लगेगा जो बेसिक ज्योतिष भी सीखता है. अब वहां मरकुरी राहु है, लेकिन है, अब मैंने उठाया कर्म विपाक संहिता. कर्म विपाक संहिता को कैसे उठाया, अब आपको दिखाते हैं, समझाते हैं क्या किया. ध्यान से देखना, अगले 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है. मून इन शतभिषा नक्षत्र, मून एक्वेरियस, शतभिषा सेकंड पदा, सेकंड पदा. तो कर्म विपाक संहिता की ये किताब मेरे पास है, आपको मैंने पहले भी दिखाई थी. राइट, यू कैन बाय दिस, आई विल शेयर दिस. तो अब मैं इसमें जाता हूं नक्षत्र में, और शतभिषा नक्षत्र के अंदर हम जाते हैं. ओके, सो देयर इज अ स्टोरी इन द शतभिषा नक्षत्र. हिंदी के अंदर श्लोक हैं संस्कृत में, और
महादेव स्टोरी बोल रहे हैं, शिव जी बोले हे प्रिय, माँ पार्वती को बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश मृगारी नाम का एक लुबक अर्थात शिकार करने वाला एक भौतिया रहता था, मतलब देयर वाज अ गाय हु यूज्ड टू डू शिकार। वो हिरणों के मांस से अपना पालन पोषण करता था, राइट, मतलब हिरण को मारना, उसको पालन पोषण करना। वो प्रतिदिन शिकार के लिए जाता, पक्षियों को मारने में पूर्णतः लिप्त रहता, मांस बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता। ओके, डू नॉट टेक दैट दिस लेडी was a, this means very selfish and cruel person in the previous life. Simple, right? मतलब whatever nonsense means, आप एक गलत कमाई से अपने परिवार को भी पाल रहे हो, शिवा ने अभी तक ये बताया है। मतलब किसी को दुख करके, किसी को मृत्यु तुल्य दुख देकर, यू नो आप अपने परिवार को पाल रहे हो, राइट। शिवा सेज इसी प्रकार काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद जब वह वृद्ध अवस्था में पहुंचा तो उसकी मृत्यु हो गई, और यमराज और उसके दूतों ने उसको कई प्रकार के यू नो प्रताड़नाएं दी। जब वो नरक से मुक्त हुआ तो उसने पहले बाज पक्षी की योनि ली, फिर ऊंट की योनि ली, और उसके बाद सियार की योनि भोग कर वो दोबारा से मनुष्य में आया। सो ही इज गिविंग थ्री डिफरेंट एनिमल्स, राइट, ही इज वेंट थ्रू बिफोर ही इज टेकन द ह्यूमन बर्थ अगेन, राइट। क्योंकि पूर्व जन्म में उसने बहुत सारे पक्षियों को मारा था, वध किया था, इसके पाप के कारण उसको गंभीर बीमारियां इस जन्म में होंगी। और सिंस उसने अपने बच्चे भी उसमें पाले थे और बहुत से यू नो फीमेल डियर्स को पाला जो प्रेग्नेंट थी, उनको मारा, उनको संतान की प्राप्ति नहीं होगी, राइट, द बेबी विल नॉट बी कंसीव्ड एंड विल हैव द प्रॉब्लम्स। तो अब मां पार्वती पूछते हैं कि उपाय बताओ, गायत्री मूल मंत्र, जात वेद से मंत्र, ये सब मंत्र मैं आपको बताऊंगा। और उन्होंने बोला कि आपको एक गाय और गोल्ड जो है वो आपको दान करना है, और ऐसे जातक को हरिवंश पुराण पढ़ना है, ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, उन्हें दक्षिणा देनी है, और वो सारी उन्होंने विधियां बताई हैं, कौन कौन से दिन में क्या कहाँ पे वो सारा करना है, राइट। और अगर आप इसमें से एक भी रेमेडी मिस नहीं करते हो तो उसके पूर्व जन्म के कर्म कट जाएंगे और चीजें ठीक होंगी, ठीक है। अब आपने ये 2 मिनट की स्टोरी पढ़ ली, राइट। सपोज यू हैव नॉट लर्न कर्म विपाक संहिता को कैसे अप्लाई किया जाता है अपनी लाइफ में, तो आप उसको बोलोगे आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, जो उसमें लिखा हुआ है, एंड यू विल से ओके डू इट एंड एवरीथिंग विल हैपन। नो, लेट्स अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग, ओके। अब अगले 5 मिनट ना अपना फोन, कॉपी, पेन सब कुछ छोड़ के मेरी तरफ देखना, स्क्रीन की तरफ देखना, कोई दिमाग में क्वेश्चंस मत लेकर आना, सिर्फ एक्टिवली, ओपनली सुनना। जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ध्यान से देखो, व्हाट इज द डीपर मीनिंग ऑफ दिस स्टोरी। फर्स्ट थिंग, मून is in the 12th house, in the nakshatra of Shatabisha, and in the Navamsha, it is in the sign of Capricorn, in 5th house। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे मून इन डी वन कुंडली में लॉर्ड ऑफ 5th हाउस, in D9 moon is sitting in the 5th house in the sign of Capricorn। अच्छा, यहां से अब तक आपको एक चीज समझ में आई, वो चीज ये है कि इस इंसान के कर्मों में 5th हाउस इन्वॉल्व है। समझ में आ गया? 5th हाउस इन्वॉल्व है,
फिफ्थ हाउस मतलब पूजा पाठ, बच्चे, स्किल, एजुकेशन, ये वो जो आपको फिफ्थ हाउस के माल बारे में पता है। हम्म। तो आई आस्क्ड दैट लेडी, मैंने कहा आपका कोई पढ़ाई में गैप आया? यस सर। पूजा पाठ करते हो? इतना नहीं सर, नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। आप समझ रहे हो? यू अंडरस्टैंडिंग? फिफ्थ हाउस इज योर पूजा पाठ, दिस दैट। अभी ये नॉर्मल सी लुकने जो दिखने वाली कुंडली है, इसके डीपर मीनिंग समझ में आ रहे हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, नवमांश में भगवान शिव ने चंद्रमा को कैप्रिकॉन साइन में क्यों डाला? क्योंकि कैप्रिकॉन साइन में बृहस्पति क्या होते हैं? नीच। बृहस्पति नीच, मंगल उच्च। तो पिछले जन्म में अगर उसका चंद्रमा मकर राशि में डाला भगवान ने उठा के, तो भगवान शिव मुझे मैसेज दे रहे हैं कि इस इंसान की जिंदगी में टेक्निकली बृहस्पति नीच का बिहेव करेगा और मंगल उच्च का बिहेव करेगा। एंड मंगल इज व्हाट? अग्रेशन, इंपल्सिवनेस। और अगर मंगल उच्च का है फिफ्थ हाउस में, मतलब चंद्रमा फिफ्थ हाउस में बैठे हैं उसके नवमांश में, ये देखो जहां पर मंगल उच्च के हो जाते हैं, और ये इसका पिछला जन्म है। दिस इज द प्रीवियस जन्म। दिस इज द प्रीवियस जन्म। ये इसका अगला है। अब आप मुझे बताओ, इस राशि का इस राशि के साथ संबंध क्या है? 212। 10 और 11 नंबर का 212 का रिलेशनशिप होता है। ये 10 नंबर से ये सेकंड राशि है, और 11 नंबर से ये 12 राशि है। तो 212 कॉम्बिनेशन इज अ लॉस। लॉस है। किस चीज का लॉस है? फिफ्थ हाउस। लॉस ऑफ चिल्ड्रन। बच्चा कंसीव भी हो रहा है लेकिन लॉस हो रहा है। गिव मी अ थम्स अप अगर आपको इतना सा समझ आया जितना मैंने आपको बताया। हाँ, इतना सा समझ में आया? परफेक्ट। ओके। Means the Navmanch is 212 from each other, pertaining to the fifth house. Jupiter debilitated, in that sign, Mangal exalted. उनको पूछा आप नॉनवेज खाते हो? कह रहे हाँ खाते हैं। मैंने कहा सबसे पहले तो वो बंद करो। ये आपकी ना थीम है पिछले जन्म से। और फिर मैंने आपको उनसे पूछा आप क्या करते हैं? गवर्नमेंट जॉब, अच्छी लेवल पे। मैंने उनको पूछा कि कोई ऊपर की इनकम आती है? बोले यस आती है। You see, when you are taking money from someone for small, small works, it is like a killing that person mentally, psychologically. और उसी पैसे से पूरा घर परिवार आपका चलेगा। वही सेम थीम हो गया। आत्मा का वही दिमाग चल रहा है जो पिछले जन्म में चल रहा था, वही दिमाग इस जन्म में चल रहा है। I said, if you want a child, you have to stop it. और इसके इस प्लेसमेंट का भाग्य पता क्या है उसका? फिर मैंने उसको एक और बात पूछी, मैं क्या आप हस्बैंड वाइफ थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं? बोले यस गुरुजी, आपको कैसे पता चला? बिकॉज बिकॉज लुक एट दिस। इसका इस जो इसने कर्म किया है पिछले जन्म में, जो शिवजी ने मुझे बता दिया, उससे नाइन्थ हाउस में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज द नाइन्थ हाउस फ्रॉम दिस मून। नाइन्थ हाउस में क्या है? शुक्र नीच का केतु के साथ, डिप्लीटेटेड वीनस विद केतु। देखो अब मैंने पहले प्लेसमेंट देखी थी, मैंने देखा उस ग्रह में कौन उच्च का नीच का है, फिर मैंने देखा कि पिछले जन्म के कर्मों से उसके नाइन्थ हाउस में उस चंद्रमा से
नाइन्थ हाउस में शुक्र केतु नीच का है, और उस चंद्रमा से थर्ड हाउस में मरकरी और राहु भी बैठा है। मींस ये देखो, इस चंद्रमा से इन द थर्ड हाउस, इन द थर्ड हाउस व्हाट वी हैव, इन द थर्ड हाउस वी हैव राहु एंड मर्कुरी। मींस मिसकम्युनिकेशन, अपनी बात से पलट जाना। मर्कुरी कम्युनिकेशन होती है, राहु धोखा होता है, इल्यूजन होता है। मींस इल्यूजनरी कॉन्वर्सेशन, अपनी बात कहना और फिर पलट जाना उस बात से, नहीं मैंने तो ऐसे कहा नहीं था, मुझे तो और पैसे चाहिए, ये तो होगा ही नहीं, अब इसमें ये प्रॉब्लम्स आ गई। इमीडिएटली शी स्टार्टेड रियलाइजिंग व्हाट शी इज डूइंग। अब महादेव ने तो सिर्फ मंत्र बताए थे, मुझे उसको कर्म भी बताने हैं। महादेव ने मां पार्वती से कहा कि कुंडली बताएगी कि उसके कहां पर कर्म गलत जा रहे हैं। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आगे बढ़ते हैं। फिर महादेव की एक अगली टेक्निक है, वो कहते हैं कि ये आप गिनो कि ये जो चंद्रमा है, वैसे तो ये शतभिषा नक्षत्र की दूसरा चरण है, ओके, बट ये पूरा का पूरा 0 डिग्री से 30 डिग्री तक होता है। सो 3 डिग्री 20 मिनट्स की पहली पदा होती है, फिर अगली जाती है 6 डिग्री 40 मिनट्स पे, अनदर 3 डिग्री 20 मिनट्स, फिर जाती है 10 डिग्रीज तक, फिर आती है 10 से आगे 13 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, तो ये पदा 1 होता है, पदा 2, पदा 3, पदा 4 ऑफ दिस जोडिएक साइन, नॉट शतभिषा। शतभिषा तो यहां से शुरू हुआ, उसकी सेकंड पदा, ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन इस एक्वेरियस जोडिएक साइन के टोटल 9 पदाओं में से ये चंद्रमा कौन सी पदा में है? फोर्थ पदा। ओ, सो इसमें टेक्निक क्या होती है कि पूरे जोडिएक साइन में, फॉरगेट अबाउट दी नक्षत्र पदा, फॉरगेट अबाउट दी नक्षत्र पदा, ओके, जोडिएक साइन की 9 पदाओं में से देखो कि ये कौन से चरण में आ रहा है। फोर्थ चरण में आ रहा है 12 डिग्री का चंद्रमा, फोर्थ चरण में आ रहा है एक्वेरियस जोडिएक के, नॉट नक्षत्र। तो इसका सारा रिजल्ट भुगतना किसको पड़ेगा? फोर्थ हाउस, मतलब सुख और परिवार। फोर्थ हाउस मतलब सुख और परिवार, मतलब परिवार आगे नहीं बढ़ेगा, सुख में, परिवार में प्रॉब्लम्स आएंगी। हमने क्या क्या देखा? चंद्रमा का रिलेटिव पोजीशन देखा। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इस जहां पर ये चंद्रमा गया है, जहां पर ये नवमांश में इसका बैठा है, इसका स्वामी कौन है? इसका स्वामी है शनि। और शनि कहां जाके बैठ गया? आत्मा कारक शुक्र के साथ 11वें भाव में। होप्स, विशेस, डिजायर्स एंड समाज। आपके बच्चा नहीं हो रहा, आप प्लान नहीं कर रहे, आप कब प्लान करोगे, आपके कब बच्चा होगा, कोई प्रॉब्लम है, किसी डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को नहीं दिखाया, एंड दिस शनि इज एस्पेक्टिंग द फिफ्थ हाउस, दिस शनि इज एस्पेक्टिंग द लग्ना, दिस शनि is also aspecting the life after marriage, which is technically the 8th house of Kundali, but 10th aspect of Shani. तो यही शनि कुंडली के प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस में जाके उसका 11वां भाव डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसका लगन डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसका फिफ्थ हाउस एंड द एट्थ हाउस ऑफ लाइफ आफ्टर मैरिज। नाउ बोथ आर थिंकिंग हमारे बच्चा ही नहीं हो रहा, हमारी मैरिड लाइफ क्या है, तेरे को प्रॉब्लम है या तेरे को प्रॉब्लम है, द फिफ्थ हाउस चिल्ड्रन इज नॉट कमिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द लग्ना, द मेंटल पीस इज गॉन। इंटरेस्टिंग नो? These things Shiva did not tell. This is only going to come through a ज्योतिषी। सपोज करो आपने मेरे साथ ऐसी 15 क्लासेस भी लगा ली विद द सेम कॉन्सेप्ट, और फिर अगर हमने 108 क्लासेस लगा के 108 चार्ट्स पे अप्लाई किया और इनकी स्टोरी समझी और फिर उपाय बताए, टेल मी द लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजर यू आर गोइंग टू बिकम इन लाइफ।
टेल मी, व्हाट लेवल विल यू हैव इन ज्योतिष? किस लेवल पे पहुंचोगे आप? और क्या, अगर कोई आज की पहली क्लास भी लगा रहा है, if somebody someone is taking the first class and who just know the basics of ज्योतिष, अगर किसी को ना समझ में आया हो बताओ, गिव मी अ थम्स डाउन इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। एंड अभी मैंने सिर्फ आपको 5 सूत्र बताए हैं, टोटल 10 से 12 सूत्र हैं। टोटल 10 से 12 सूत्र हैं जो हम अप्लाई करते हैं एक चार्ट के ऊपर, टू टेल यू व्हाट काइंड ऑफ अ कर्मा एंड हाउ टू कम आउट ऑफ इट। अब जब हमने ये कर लिया, फिर मैंने उसका देखा कि उसका किस तिथि का जन्म है, किस पक्ष का जन्म है, देन वी विल डिसाइड द रेमेडीज कि किस पक्ष में, किस नक्षत्र में, किस तिथि में, कहां पे जाके रेमेडीज करनी है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज, लेडीज एंड जेंटलमैन, कर्म विपाक संहिता। आई कैन डिस्कस कपल ऑफ मोर चार्ट, उसके हस्बैंड का, उसके स्पाउस का चार्ट भी मैं डिस्कस करूंगा, बट यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट। अब आप और भी चीजें देख सकते हैं, हम आपको और चीजें समझाता हूं इसमें, रुको। इसी चार्ट में आई शो यू मोर थिंग्स। और चीजें क्या हैं इस चार्ट के अंदर? यू सी, कैप्रिकॉन बीइंग द 12th नवांश ऑफ, यू नो, डोनेशंस, क्योंकि यहां से कैप्रिकॉन 12th है। देखो अगर ये है तो इसका 12वां साइन कैप्रिकॉन होगा ना, तो हम बोलेंगे कि ये कैप्रिकॉन नवांश में गया। ये चंद्रमा यहां पर एक्वेरियस में है, लेकिन यहां पर कौन से नवमांश में है? हम इसको बोलते हैं कैप्रिकॉन नवांश। जैसे सूर्य यहां पर 9th हाउस में है, कौन से नवमांश में गया है? हम बोलेंगे लियो नवमांश में गया है। ओके, ऐसे कहा जाता है ज्योतिष के अंदर। सो दिस इज द 12th नवमांश। कैसे 12th है? आप काउंट करो ना, 11 से जब आप बढ़ोगे आगे तो ये 12वें नंबर का नवमांश है ना। हेलो, ये 12वें नंबर का है ना। 11 12 1 2 3 4 उंगली पे गिरो, इसका नंबर 11वें नंबर पे आएगा, 11th नंबर पे। सो इट इज दी, इट इज 12वां हाउस क्या, किस चीज का होता है? डोनेशंस का, लेटिंग गो का। बट वहां पर भगवान शिव कहते हैं कि इस इंसान ने बहुत कुछ कमाया, बहुत पाप भी किया, लेकिन क्योंकि ये 12वें नवमांश में इसलिए पहुंचा, 12वें साइन में इसलिए पहुंचा, फ्रॉम द एक्वेरियस टू द कैप्रिकॉन, जो 12वें में पड़ता है एक्वेरियस से, बिकॉज इसने कोई दान पुण्य नहीं किया। नो दान पुण्य वॉज गिवन, तो इस जन्म में उसको दान पुण्य बताना होगा। राइट, ही डिड ऑल द सेल्फिश कर्मास बट नो दान पुण्य। एंड और भी देखते हैं मोर यहां पर। और एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या है इसके? शनि। इस चंद्रमा से एग्जैक्टली ऑपोजिट शनि है। राइट, तो टेक्निकली 7th हाउस में उसके हस्बैंड है, मतलब द 7th हाउस फ्रॉम वेयर द मून इज गोइंग टू बी द कर्मा ऑफ योर स्पाउस। तो वहां शनि बैठे हैं, दैट मीन्स द डिले इज कमिंग फ्रॉम द हस्बैंड एज वेल, ही ऑल्सो हैव अ कर्मा इन्वॉल्व देयर। अगर जुपिटर बैठा होता, उस चंद्रमा के ऑपोजिट जुपिटर बैठा होता, तो वो जुपिटर की वजह से इनको बच्चा हो जाता, मतलब उसके हस्बैंड के ग्रह इतने स्ट्रांग होते जिसकी वजह से बच्चा हो जाता। आप देखो नवमांश में जहां पे भी आपका चंद्रमा बैठा है, उसके ऑपोजिट जो भी ग्रह बैठे हैं, जुपिटर है, शनि है, मंगल है, बुध है, क्या वो आपके स्पाउस के ट्रेड्स के साथ मैच नहीं करते? वो ग्रह 100% करते हैं। गो वॉच इट, गो वॉच इट। अभी अपना नवमांश खोलो, चंद्रमा से 7th हाउस में देखो, जो जो ग्रह बैठे हैं वो आपके स्पाउस की अकल, ट्रेड्स और एनवायरनमेंट के साथ मैच करते हैं। दैट्स अनदर वे ऑफ प्रिडिक्टिंग। गिव मी अ थम्स अप इफ यू कैन रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग। यू हैव टू सी, दिस इज शोइंग द कर्मा ऑफ योर स्पाउस।
दिस इज लेडीज एंड जेंटलमैन कर्म विपाक संहिता। वी विल गो डीप। पंचम भाव से बच्चे, दिस दैट, नवमांश विद रिस्पेक्ट टू किस नवमांश में गया, उसका डिस्पोजिटर कहां पे आया, लगन कुंडली में किन किन ग्रहों के साथ जुड़ा, किन किन की दृष्टि आई। योर पास्ट लाइफ इज अ पीस ऑफ अ केक, कि भाई ये किया है, अगर इस जन्म में भी आप सेम ही चीजें कर रहे हो तो रोक दीजिए उसको, प्लीज स्टॉप इट, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। तो कर्मों के बारे में बताया, कुछ कर्मों को रुकवा दिया कि ये कर्म नहीं करने, यहां पर आपको अमेंडमेंट्स करनी है अपनी लाइफ में, और ये उपाय करने हैं। आई गारंटी यू द चाइल्ड विल बी देयर। इसको ज्योतिष बोलते हैं। आफ्टर यू लर्न द बेसिक्स ऑफ ज्योतिष, इसको ज्योतिष बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ज्योतिष। टू अंडरस्टैंड, सी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को ट्रीट करना आसान है, लेकिन पास्ट को निकाल के उसको सुपर इंपोज करके फैंटास्टिक, मतलब इसमें तो आपने उस इंसान को निकाल ही लिया ना बाहर, परमानेंटली निकाल लिया ना। फॉरगेट अबाउट ट्रीटिंग द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। कभी कभी इन लॉज के साथ रिलेशनशिप इतने खराब होते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं लोगों को कि आप छोड़ो, लेट गो करो तो सही एक बार। बिकॉज मुझे पता होता है कि वो क्या कर्म कहां पे आ रहा है। ऑल दे हैव टू डू इज ब्लाइंडली ट्रस्ट मी। मैं किसी को रुद्राक्ष देता हूं, किसी को बोलता हूं वहां जाके नहा के आओ, किसी को एक जेमस्टोन देता हूं। आई एम नॉट ट्रीटिंग देयर प्रेजेंट सर्कमस्टांस, आई एम ट्रीटिंग देयर प्रारब्ध। And people, what they do is the agony. The worst part is I give them 10 remedies, they do 5. And 5 they will not do. Or 7 is given, 3 they will do, 4 not do. The issue is not resolved. And the Jyotish and the Jyotishi is blamed. ये मैं आपको आज इस 90 मिनट्स में इंट्रोड्यूस करना चाहता था, आपको बताना चाहता था ये होती है कर्म विपाक संहिता। आपका हर एक थॉट, आपने जो कर्म किया, जो आपने सोचा, वो एक एक चीज लिखी जा रही है। 24/7 सबका अच्छा सोचो और राम राम बोलो। दैट्स इट। और अपनी कुंडली जगन्नाथ जी के चरणों में रख दो, और माँ पार्वती को अपनी माँ और शिव जी को अपना पिता बनाकर यू कैन बिगिन अ न्यू जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर्मास ऑफ somebody with me, and then take Jyotish to the highest level where nobody has even thought of. Every single person who comes to you should go back with an experience कि मेरे कर्म काटेगा ये बंदा, और मैं क्या या तुम क्या काटोगे, वो भगवान काटेंगे। वही इंसान आपको अप्रोच करेगा जिसके जन्म में कर्म विपाक संहिता को सुनकर, उसका लेसन समझकर लिखा हुआ है भाग्य में। आई हैव गिवन यू 4-5 टेक्निक्स, देयर आर 10 मोर टेक्निक्स। कहां पर दृष्टियां आई, कहां पर गया, कैसे हुआ, उच्च नीच, रेट्रो कंबस्ट, वो सब अप्लाई करना होगा। ओके, आज इतना ही करेंगे। इफ यू हैड एनी क्वेश्चंस तो ग्रुप में डालना। मैं एक थर्ड प्लेस पे हूँ, मेरे पास आज कुछ कमिटमेंट्स हैं, इसलिए मेरी बैकग्राउंड थोड़ी सी स्टारी है। सो दैट इज व्हाई आई वाज supposed to, but I wanted to connect with you people today, and I gave you whatever I can today in this limited 90 minutes of time. Whatever questions, concerns you have, just put in the group. I'll try to answer them whatever whenever I can. Right? आज इतना ही करें।